Hello students, welcome back to my channel. Today, as I told you last class, today I will complete numericals on force and moment of force. This is part 2, and after completion of this chapter of physics will complete. Okay, so first numerical, a half meter rod is pivoted at this center with two weights 20 gf and 12 gf suspended at a perpendicular distance of 6 centimeter and 10 centimeter from the pivot as shown. This is pivot. Which of the two forces causes clockwise movement? Very easy, but this is a exam question. This is an exam question because in exam, this is the trick in exam. ICSE exam, what type of question is asked? This type of question only bit wise question. 1 bit, 1 mark. So which of the two forces causes clockwise movement? Definitely 12 GF causes clockwise movement like this. Complete. Which of the two forces causes anti-clockwise movement? 20 GF causes anti-clockwise movement. Complete. If the rod is in equilibrium, यहाँ थोड़ा हमें करना पड़ेगा. रॉड इक्विलिब्रियम में है या नहीं. हम देखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू 12 into 12. देखो आंसर ओनली थर्ड बीट के लिए मैं करता हूँ. फर्स्ट सेकंड बीट तो कंप्लीट, थर्ड बीट क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट क्या होगा 12 into 12 और दिस वन आई माने दिस शुड बी 10. दो जगह 12 ये लिख दिया 10 सेंटीमीटर. ओके 12 into 10 120 GF सेंटीमीटर. ये क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट यहाँ एट इक्विलिब्रियम लिखना जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खाली देखना है क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट इक्वल टू 20 into 6 120 GF सेंटीमीटर. ये जो है दिस वन क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ओके, खाली आंसर यही होगा. सिंस क्लॉकवाइज मूवमेंट इज सेम एज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, बिकॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट इज सेम एज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. नाउ फोर्थ बीट, ये थोड़ा अलग प्रकार होता है. फोर्थ बीट, सो फोर्थ बीट के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. ये मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा. सपोज फोर्थ बीट के लिए मैंने इसको चेंज करना पड़ेगा. मैं फोर्थ बीट के लिए हम लोग को अलग क्वेश्चन है, अलग फिगर बनाएंगे हम लोग. तो अब ये कहा इफ द डायरेक्शन ऑफ 20 GF इज रिवर्स, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम, लेकिन इसका डायरेक्शन को हम रिवर्स किए. ऐसे तुम कहेंगे रिवर्स करने पर ये क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में घूमने लगेगा. ओके, when if the direction of 20 GF is reverse, what is the resultant moment of force on the rod? So fourth beat, answer fourth beat. तो क्लॉक हम लिखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट equal to 12 into 10 equal to 120 GF सेंटीमीटर. ओके, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट सेकंड बीट वही होता है. ये क्लॉकवाइज मूवमेंट यू मूवमेंट होगा. ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट क्लॉकवाइज moment about O equal to 20 into 6 equal to 120 GF सेंटीमीटर. ये भी क्लॉकवाइज. Therefore resultant clockwise moment about O, clockwise moment
about O equal to 120 AB clockwise plus 120 AB clockwise equal to 240 GF सेंटीमीटर. ओके, इसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, इससे टर्न करेगा क्लॉकवाइज. देन फिफ्थ बिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू वही न्यूटन मीटर. ओके, दिस वन कंप्लीटेड. देन नेक्स्ट वन, this is part 2. I am writing the question. Second question, the moment of force of 5 Newton the moment of force of 5 Newton about a point is 2 Newton meter. About a point is 2 Newton meter. Okay, calculate the moment of force of 5 Newton about a point is 2 Newton meter. Calculate the distance of the point from the point of application of force. The moment of force of 5 Newton about a point is 2 Newton meter. Calculate, very easy, the distance of the point from the point of application of the force. Application of the force. Answer, moment of force equal to, इसको लिख दो tau equal to force F into perpendicular distance. Perpendicular distance d. ये क्या दे रखा है? टाउ दे रखा है. इम्प्लाइज 2 इक्वल टू 5 इंटू डी. इम्प्लाइज d इक्वल टू 0.4 मीटर. ओके, वेरी इजी. What these are the exam questions. This is very important question. The weight of two bodies are 2 Newton and 2 kgf respectively. What is the mass of each body? ये बहुत important. तो so we can write fast body. Fast body के लिए क्या होता है? Fast body के लिए W1 2 Newton. W1 equal to 2 Newton. We know
W1 equal to M1 into G implies 2 equal to M1 into G. G means 10. Okay, take G equal to 10 meter per second square. इसको भी लिखना है. Imply M1 equal to 0.2 kg. For second body के लिए very important, W2 equal to 2 kgf. हम जानते 1 kgf equal to 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन equal to 2 into 10 equal to 20 न्यूटन. Implies 20 equal W2 equal to M2 into G. Implies यहाँ implied मत लिखो. W2 कितना है 2 न्यूटन 2 kgf मतलब 20 न्यूटन. 20 equal to M2 into 10 imply M2 equal to 2 kg because mass in kg equal to weight in kgf. Okay, so यहाँ से ये चीज पता चला mass in kg equal to weight in kgf. Okay. देखो, if the moment of a force 20 Newton about the center of a wheel O as shown is 6 Newton meter. Calculate the moment of 20 Newton about A. Okay, this one O. So we know moment of the force 20 Newton about O इक्वल टू कितना है 6 न्यूटन मीटर. F इक्वल टू फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन. ओके, implies 6 equal to F into D 20 into D implies D means यहाँ R. ये
R1 इसको R2 लिख दो, R1, ओके, implies R1 equal to 6/20 equal to 0.3 meter, but R1 equal to R2 because the radius of the same circle equal to 0.3 meter, implies R equal to R1 plus R2 equal to 2 into 0.3, 0.6 meter, implies moment of 20 Newton about A equal to force into perpendicular distance 20 into 0.6 equal to 20 into 6/10 equal to 12 Newton. Okay, समझे? This type easy question will come. Okay, then next one. A uniform meter scale. I am writing, then only I will dictate. A uniform meter scale can be balanced at 70 centimeter mark. तो फर्स्ट फिगर होता है एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल बना देना, इस टाइप का फिगर फर्स्ट यूनिफॉर्म मीटर स्केल बना देंगे 100 सेंटीमीटर. ये बैलेंस हुआ कहाँ है, इसका बीच वाला ये 50 सेंटीमीटर, ये मिड पॉइंट, लेकिन ये बैलेंस हुआ 70 सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, ये हो 70 सेंटीमीटर. When a mass of 0.05 kg is hung from 94 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पे 94 सेंटीमीटर में एक मास कितना है 0.05 kg. मैंने कहा था मास इन kg इक्वल टू वेट इन kgf, तो अब यहाँ पे मैंने 0.05 kgf कर दिया. ओके, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल. तो वेट, पहले वेट ऑफ द मीटर स्केल W kgf यहाँ पे गिरेगा. तो अब इसके पहले डायग्राम कंप्लीट. ओके, B1 कंप्लीट, देन B2. फाइंड द मास ऑफ द मीटर स्केल एट इक्विलिब्रियम. इसमें लिखना है एट इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O, क्लॉकवाइज, ये बोर्ड क्वेश्चन, मोमेंट अबाउट O इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट O. Implies 0.05 into 24 SA equal to W into 20, because 70 minus 50 20. तो अब इसको ऐसे कर दो, कितना है 4 5 द 20, 4 6 द
24। 5 के साथ इसको कटने पर 0.01 इम्प्लाई W इक्वल टू 0.06 kgf, लेकिन उन्होंने मास मांगा, इम्प्लाई मास ऑफ द स्केल m इक्वल टू 0.06 kg। अब इसका आंसर सेटिस्फाई हो गया, ओ kg नॉट kg, because mass in kg equal to weight in kg. Okay, this one complete. और 1 2 न्यूमेरिकल करेंगे, then I think you will be clear about the chapter. First chapter will be complete. See, a uniform meter scale is pivoted at 20 centimeter mark. This is the uniform meter scale. फर्स्ट आंख बंद करके 0 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसका बीच वाला 50 सेंटीमीटर, ये पाइवोटेड हुआ 20 सेंटीमीटर मार्क में, तब ये 20 सेंटीमीटर में पाइवोटेड हुआ, ऐसे वो पाइवोटिंग रखा हुआ, इट कैन टर्न फ्रॉम द 20 सेंटीमीटर मार्क। A weight of 100 GF is suspended at the 0 mark. इसको अगर ऐसे रखेंगे, एक लिटिल कॉमन सेंस, इस साइड वो कैसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पर हम कहेंगे इसको बचाने के लिए इस साइड कुछ लोड देना चाहिए, इसीलिए 0 सेंटीमीटर में उन्होंने कहा ये वेट ऑफ 100 GF, यहाँ 100 GF दे दिए, शायद वो बैलेंस हो गया होगा। कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस स्केल, वेट तो बीच में आएगा ना, WGF। Okay, so at equilibrium, clockwise moment about O, clockwise moment about O equal to anti-clockwise moment about O. Implies W into कितना है 30 इक्वल टू 100 इंटू कितना है 20, ये इससे 100 इंटू 20 इम्प्लाइज W इक्वल टू 100/3, कितना है 3 kg ओ GF। Okay. Then only one question, 2014 question. Luckily it came bearing 4 marks in 2014, but normally it won't come, it should not come 40 marks, not 4 marks, bearing 4 marks, it should come bearing 2 marks, but luckily it came bearing 4 marks.
मोमेंट ऑफ कपल का। हाँ, टू फोर्सेस, इसका फिगर मैं नहीं बनाता हूँ, क्यों ना नहीं लिखता हूँ, तुम लोग को पता चल जाएगा। जैसे एक बी में से होता है, मैंने कहा दो फोर्स गिरा, यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, मतलब ये टर्न होगा ऐसे, ये टर्न होगा ऐसे, ये मोमेंट ऑफ कपल जरूर होगा। तब ये वो, ये ए, ये बी। हाँ, ये कहा, ये टोटल 4 मीटर, ये होता है 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये सेंटर। ये कहा फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल। और कपल हम जानते हैं, मोमेंट ऑफ कपल और कपल इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू कपल वार। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आया, हम खाली लिख देंगे मोमेंट ऑफ कपल और रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू 10 इंटू 4 समान इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर। लेकिन ये बिकॉज इट केम विथ वेरी 4 मार्क्स, इसीलिए हम तो इतना एक लाइन का नहीं लिखेंगे, थोड़ा इसको एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे आंसर मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन एट ए अबाउट ओ इक्वल टू कितना है? 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन एट बी अबाउट ओ इक्वल टू 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर, ये भी क्लॉकवाइज। टोटल और रिजल्टेंट और नेट मोमेंट ऑफ मोमेंट of the two forces about O और मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू क्या हुआ? 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज प्लस 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। मैंने एक लाइन में अगर एमसीक्यू आया होगा, हम खाली लिख देंगे आइदर फोर्स इनटू कपल वार 10 इंटू 4 40, लेकिन अगर 4 मार्क या 2 मार्क आया, वी शुड फॉलो दिस मेथड। ओके, सो टुडे हाउ मैंने आई ट्राइड ओनली टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स, that is exam based numericals. Hope you will be highly benefited if you go through this lesson. Okay, you both theory and completed and numerical portion of this chapter completed. Wishing you all the best. I remain today. Thank you very much. Yeah.